Myself G.K. Sahu. I am working as a senior and principal scientist in Bridge Engineering and Structures Division at CRRI New Delhi. This topic is very common, construction defects in bridges, and you are all familiar with some types of defects. So, let us see just some photographs. I will not stretch your mind actually, just you have to go through it. So, these are the points how we will inspect the bridges. Number 1, I will cover damage and distress mapping, how you have to report, causes of distresses in structures, and some rehabilitation measures, so that you can realize what are the common mistakes we are doing during the various process and what is the result of that. Actually, concrete is a wonderful material, but you have to handle with care in various stages. That is from just birth of the concrete, that constituent collections, cement, fine aggregate, coarse aggregate, water, everything you have to take care, then only it is the wonderful material. Otherwise, it will create worst problem for you. So, it is in your hand whether you want your product waste or you have to face the worst quality. So, it depends on individual how you are taking care of the concrete family. These are the various area where there is some errors. You can see we can categorize in 3 area: design stages, there is some mistakes; during construction also there is some mistakes; and then distress in the services stage. I will come that side actually, it is difficult to see this and point something. Yeah, and I can watch also your all the activities. That is the advantage. Yeah. So, errors in the design state, there may be some mistakes. You can say loading specifications while taking loads, you may take some wrong loads. Nowadays, a special vehicle is also there, but that is for big bridges. So, in that way, first is the loading specification. You have to select right specification for your design. Then material specifications, yes, that also you have to take care. Then design code provisions, drafting mistakes. In drafting also, actually there is many mistakes. You see, if you are providing in design 20 mm dia, but he has written 12 dia, then it will be very blunder mistake. So, during design, there is that possibility. That's why everything is better if someone has designed, someone has prepared that drawings, some third party should check that one, so that that mistake can be taken care at the time of design only. Otherwise, it will go and it will be implemented. Second is the construction stage. You see poor construction practice that is generally seen at the site. Lack of concrete cover, this is the very small thing, but as just Dr. Rao has pointed out, you see, if you are not providing cover and just thinking it will give 100-year life, it is very difficult. If you reduce the cover by 2 mm, then life will go for 10 years. You just imagine, if you reduce the cover by 2 mm only, if you consider 100 years and you see that graph, cover versus years, thickness of cover and life, you will find 10 years has gone by reducing 2 millimeter. And you see at the construction site, we will not find any cover block. In many sites when you visit, there is no cover blocks. So, you have to insist at the site, please make cover blocks of the same grade of concrete. Say if M20 or M25 you are using, your cover blocks should be also of the same grade of concrete. Otherwise, what they are doing, just mortar cover, and that is the very biggest mistake actually. You are providing passage
to enter in your concrete family. So you have provided gates if you are not providing proper concrete cover blocks. Just mortar they will make and put, and that is the passage for water and any all elements. So that first concrete cover is the very important thing that you should control actually. If you are providing 40 mm cover, that should be 40. Otherwise, say if you reduce to mm, I told just 10 years have gone. So that is the importance of that cover. But we are all neglecting those things. So you have to insist at the side, yes, your cover should be proper. Then second one is the poor compaction. I will show many figures where this is the very big culprit, compaction at the site. You will not find perfect in any site. But let us try to achieve 90% at least. If you are not compacting properly and expecting this structure will go for 100 years, how it is possible? So compaction, everyone should take care. That is the biggest problem at the site. People are putting concrete, very good quality of concrete they will provide, but compaction is very poor. If that is there, then whole strength will go. So that compaction, that durability will, strength you will lost, that is there, but that structure will live only 25 years instead of 100 years. So later on, we are just blaming each other. This concrete supplier is not good, they have not provided good reinforcement. Like that we are just throwing away from our side. No, this is the team action. Whoever is the controller, project manager, he has to think as a whole team, starting from the material supplier, that contract laborers, whoever is working there, everyone is the part of that. If there is any mistake in any part, then you will not get good product. So work in a team, you have to first educate whole the working people there, whosoever that, laborers, etc., supervisor, everything. So I request all of you, whenever you are starting any project, let us have one meeting weekly and brief all the laborers, all the supervisor, all the officials, whosoever is there. These are the things we have to do, these are the right way of working. There you educate what is the cover, yeah, you show, you bring some cover block and show those people, yes, you have to prepare like this, you have to put like this, you have to put, you have to do proper compaction. Then curing. Curing is also a very neglected point. You will not find curing when you leave from, you don't expect from laborers, they will do. If you tell, okay, you have to do, say, in summer 10 times, he will do 2 times, like that. So, but that everything will affect your concrete. That's why people are telling concrete is the very good material, but you have to handle with care in every stage. ये भी नहीं है बना दिया, बना देने के बाद छोड़ दिया, आपको मेंटेनेंस भी करना है। 2 साल 3 साल में आप प्रॉपर इंस्पेक्ट कीजिए ब्रिजेस का, कलवर्ट का, और उसको मेंटेन भी करना है। ये नहीं कि उसमें थोड़ा सा एक जगह स्पॉलिंग स्टार्ट होगी और हम तो जब भी करेंगे जब इसमें 2 क्यूबिक मीटर ना चला जाए। तो ये टेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। जहाँ भी है तब आपकी वो 100 ईयर्स चलेगी। विदाउट मेंटेनेंस 100 ईयर्स का पीरियड डिजाइन नहीं है। जो आपके रूटीन मेंटेनेंस हैं वो करते रहना है, जब भी 100 ईयर्स चलेगी। नहीं तो कोई स्ट्रक्चर ऐसा नहीं है जो 100 ईयर्स आपको सर्विस देगी विदाउट मेंटेनेंस। बट हमें जो सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच में है, हम खासकर ब्रिज में ये मानते हैं कि एक बार बना दिया उसके बाद उसका दर्शन करने की जरूरत नहीं है नीचे से, केवल हमें ऊपर से ही ब्लैक टॉप सरफेसिंग एवरी 5 ईयर करते चले जाना है। बट हमें ब्रिज को नहीं देखना है, ये हमारे दिमाग में घुसा हुआ है। बट ऐसा नहीं है, ब्रिज आपको हर एक साल में 2 बार देखना है, बिफोर विंटर, बिफोर रेनी सीजन एंड आफ्टर रेनी सीजन, सो दैट कहीं भी कोई माइनर डिफेक्ट अगर स्टार्ट हुआ है तो उसको आप प्रॉपर टेक केयर कर सके टाइमली। ये जो मेंटेनेंस का भी है ना, अगर आपने नेग्लेक्ट कर दिया मान लीजिए 10 ईयर्स, देन आपकी सर्विस लाइफ काफ़ी रिड्यूस हो जाती है। ये नहीं है, अगर मैं रेगुलर मेंटेनेंस करता रहता हूँ जब भी मेरी ब्रिज चलेगी 100 ईयर्स।
अदरवाइज आप मोस्टली पाएंगे 25 साल, 30 साल, 50 के बाद तो बहुत ही कम होते हैं। तो ये सब हमारी कंस्ट्रक्शन स्टेज की मेजर डिफेक्ट्स में आती हैं। इनएडिक्वेट क्यूरिंग भी है, देखिए क्यूरिंग को काफ़ी नेग्लेक्ट करते हैं साइट में, बिल्कुल एक आध दिन डाल दिया उसके बाद तो भूल ही गए, तो वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है। लैक ऑफ क्वालिटी कंट्रोल, आपको प्रॉपर जो मिक्स डिजाइन यूज़ करने हैं वो ही यूज़ करनी है। ये नहीं कि मेरा अभी मान लीजिए एग्रीगेट चेंज हो गया, फाइन एग्रीगेट सैंड किसी और रिवर से आने लगी, कहीं और सोर्स हो गया, चेंज हो गया, परंतु मेरा मिक्स डिजाइन वही रहेगा। ये जनरली प्रैक्टिस होती है लोगों की। तो पहले ही आपको अगर कोई बड़ा प्रोजेक्ट है तो उसमें प्लान कीजिए आप कि ये प्रोजेक्ट मेरा बड़ा है, मुझे हो सकता है एग्रीगेट डिफरेंट सोर्सेज से लेने पड़े, तो मैं इनिशियल स्टेज में ही 3-4 तरह की मिक्स डिजाइन करके रखूं कि मैं इस रिवर का सैंड यूज करूंगा तो मेरा ये है। अगर मानिए कोर्स एग्रीगेट मेरी चेंज हो रही तो इस सोर्स का कोर्स एग्रीगेट यूज करूंगा तो मिक्स डिजाइन नहीं होगा। ये नहीं कि मैंने केवल एक ही M25 या M30 जो भी यूज किया है और उसे पूरे प्रोजेक्ट ड्यूरेशन में यूज करता रहा और ये नेग्लेक्ट करता रहा कि मेरी सैंड कहाँ से है, कोर्स एग्रीगेट कौन से सोर्स से है। अगर ऐसा करेंगे तो वो आता है लैक ऑफ क्वालिटी कंट्रोल का पहला डायरेक्ट हिटिंग है वो, मतलब फिर तो आगे कुछ हो ही नहीं सकता। अगर आपने मिक्स डिजाइन में ही कोई कंट्रोल नहीं किया है तो फिर आप प्रोडक्ट का क्या सोच रहे हैं, वो क्या प्रोडक्ट होगा। हमें M25 को जब चेक करेंगे ना तब रोना आ जाएगा, वो M12 निकलेगा, M10 निकलेगा और उसके बाद आपके ऊपर अननेसेसरी ये क्वालिटी कंट्रोल वाले परेशानी क्रिएट करेंगे। जब चेक करने आएंगे ना 4 कोर निकालेंगे और उसी में बता देंगे आपने तो M10 का बना रखा है। तो वहाँ सबसे ज़्यादा ध्यान देनी है कि हमारी क्वालिटी को कंट्रोल करनी है, तो हमें हमारा मिक्स डिजाइन, अगर बड़ा प्रोजेक्ट है तो अवश्य आप 3-4 सोर्सेज के हिसाब से अपना सोच कर उसका डिजाइन करवाएं, अदरवाइज बहुत डिफिकल्ट है। देन अब इनसफिशिएंट साइट सुपरविजन, ये आपको हैबिट बनानी पड़ेगी एज ए इंजीनियर कि या तो घर जाते समय या फिर घर लौटते समय आपको अपनी साइट का एक बार विजिट अवश्य करना है। ये अगर कोई ऑफिसर नहीं करता है, बहुत ही बिजी है मैं मानता हूं, तो अगर बहुत बिजी है तो उसे सप्ताह में एक बार अवश्य करना है कम से कम, या तो घर जाते समय कर लो या खाना खाने समय कर लो या घर वापस आते समय, और कभी एक ही टाइम में ना करो। आपका टाइम सीक्रेट होना चाहिए, रैंडम होना चाहिए। एक विजिट मैंने मॉर्निंग बिफोर कर लिया ऑफिस जाने से, एक मैं लंच में जाने के समय कर लिया, एक मैं किसी दिन लौटते हुए। मतलब साइट में उसे ये नहीं एक्सपेक्टेशन होना चाहिए कि सर तो 10 बजे ही आते हैं साइट पे और 10 बजे के बाद कभी आते ही नहीं, तो आपको 5 बजे भी पहुंचना है, 2 बजे भी पहुंचना है और सुबह 10 बजे भी पहुंचना है। तो इस तरह से अगर साइट का आप विजिट करते हैं देन ओनली आपकी साइट की प्रोग्रेस अच्छी होगी, आपकी क्वालिटी मेंटेन होगी और आप शांति से सो सकेंगे। अदरवाइज आपको नींद आने वाली नहीं है, बेमतलब का बीपी की गोलियां खानी पड़ेगी, वो पक्का है, क्योंकि आपने जो टाइम देना था साइट में वो नहीं लगाया है। जब आपने साइट में टाइम नहीं दिया है तो रात को सोते हुए वो टाइम आपको देना है बिना नींद के, और नींद की गोली भी खानी पड़ेगी। तो इसलिए मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि जिसके भी चार्ज में छोटा सा कलवर्ट है, कुछ भी हो, अगर कंक्रीटिंग हो रही है तो आपका एक रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर का प्रेजेंस बहुत ही एसेंशियल है। अगर आप नहीं जा सकते आप बोलिए ठीक है साइट से मुझे फोटो क्लिक करके दीजिए, आजकल तो बहुत अच्छी फैसिलिटी है, कहीं भी कोई है व्हाट्सएप में करेगा आपको डेट टाइम एवरीथिंग पता है किस समय आपकी कौन सी कंक्रीटिंग हो रही है। तो ये मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर इतने लोग प्रेजेंट हैं, अगर आपने एक ब्रिज भी सेव कर दिया हमारे देश के लिए तो ये एक बहुत बड़ा योगदान होगा, अदरवाइज हमारी स्टेटिंग प्रोग्राम का कोई महत्व नहीं होगा। तो आज ये सबका आपका प्रॉमिस होगा कि जिसके भी चार्ज में जो भी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी जा रही है उसकी आप प्रॉपर टेक केयर करेंगे। अगर आपने एक भी ब्रिज बचा दिया ना तो अपने देश के लिए बहुत बड़ा योगदान है आपका, क्योंकि आगे जाके देखिएगा कितनी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम होती है। अगर बड़ी स्ट्रक्चर्स है तब तो बहुत ज्यादा ही प्रॉब्लम आ जाती है, इवन हमें रिप्लेसमेंट के लिए भी रिकमेंड करना पड़ता है, जबकि एज केवल 20 साल ही हुआ होता है। तो वो दिक्कत नहीं आनी चाहिए, अदरवाइज हमारा ट्रेनिंग करने का कोई फायदा नहीं है। अगर आपने उसको अपनी साइट पे इंप्लीमेंट नहीं किया तो मुझे उसमें PhD कर लेने से भी कोई फायदा नहीं है उस सब्जेक्ट में।
वो आप जो भी कर रहे हैं अपने साइट में उसको इम्प्लीमेंट कीजिए। ट्रेनिंग में जो भी सुना उसको मुझे इम्प्लीमेंट करना है। तो भाई अब बताइए, जिनका कंस्ट्रक्शन साइट चालू है वो वीक में एक बार विजिट करोगे नहीं करोगे अपनी साइट? क्योंकि जब हम जाते हैं ना, हमें दिक्कत ये हो रही, हम 15 साल बाद जाते हैं, 20 साल बाद जाते हैं इन्वेस्टिगेशन करने, तो ऑफिसर इंचार्ज को ये पता नहीं होता कि मुझे ब्रिज में नीचे जाने के लिए लेफ्ट से जाना है, राइट से जाना है, या इस एंड से जाना है, या उस एंड से जाना है। ये जो ऑफिसर साथ में जाते हैं उनको ये भी पता नहीं कि अपनी ब्रिज के नीचे जाने के लिए आपका कौन सा पैसेज है, वहीं आपके सामने झाड़ी कटेंगी तब आप नीचे जाओगे। तो ये नौबत नहीं आनी चाहिए। इंस्पेक्शन आपका रेगुलर चलते रहना चाहिए। और साल में 2 बार जाने में क्या है भाई, कोई एक रिस्पॉन्सिबल बंदे को जाके 4 फोटो खींच के ही तो लाना है ना। तो ये सब चीजें अपनी लैक ऑफ क्वालिटी कंट्रोल पे है और इनसफिशिएंट साइट सुपरविजन। तो अगर हम इन पॉइंट्स को ध्यान रखते हैं तो मैं नहीं सोचता कि हमारी ब्रिज 100 ईयर्स नहीं चलेंगी, परंतु हम हर स्टेज पे नेग्लेक्ट करते हैं। स्टार्ट कर देते हैं हम मिक्स डिजाइन से, हम केयर ही नहीं करते कि जो बनाने वाला है वो कौन सा सैंड आज यूज कर रहा है, 1 महीने बाद कौन सा कर रहा है, कहाँ से कौन सा एग्रीगेट यूज कर रहा है, और उसका मिक्स डिजाइन एक ही रहता है। जो प्रपोर्शन उसने एक किसी कॉलेज से करा के लाया है उसी प्रपोर्शन को वो पूरी प्रोजेक्ट में यूज कर रहा है। और दुनिया भर से मटेरियल आ रही, डिफरेंट सीमेंट का ब्रांड यूज कर रहा है, कभी अल्ट्राटेक से ले लिया, कभी एचसीसी ले लिया, कभी किसी को भी ले लिया। तो ये जब तक आप टेक केयर नहीं करेंगे आपका स्ट्रक्चर सही नहीं हो सकता। ओके, तो ये पॉइंट क्लियर है भाई कि बाई बर्थ हमें ध्यान देना है, अदरवाइज आगे चल के बहुत दिक्कत होने वाली है। देन आपका आता है डिस्ट्रेस इन द सर्विस स्टेजेस। ये अनफॉर्चुनेटली होता है कि काफी ओवरलोडेड व्हीकल क्रॉस कर गई, आपने सब कुछ अच्छा किया, उसके बाद भी आपकी स्ट्रक्चर में डिस्ट्रेसेस आ गई। ये होता है क्योंकि हमारी जो मान लीजिए स्ट्रक्चर डिजाइन है उसकी एक लिमिट है। परंतु मैं ओवरलोडिंग का भी चार्ट दिखाऊंगा कि जिन एरिया में ये रेत खनन वाले होते हैं ना, रेत ले जाते हैं रिवर से उठा के, उनकी व्हीकल की लोड की कोई कैपेसिटी डिफाइन करना मुश्किल है। अगर 40 टन का ट्रक है ना तो वो भी चाहता है कि मैं 100 टन लेके चलूं, तो वैसे एरिया में ये ओवरलोडिंग की प्रॉब्लम आ जाती है। चेंज इन यूज ये फ्रीक्वेंटली होता है, पहले सिंगल लेन है फिर हम डबल लेन में कन्वर्ट करते हैं, उस समय कुछ अल्टरेशन करते हैं, तो इस तरह से हमारी चेंजेस होती हैं यूज में। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स होके, परंतु ये ज़्यादा हॉबी जब होती है जब हम बिल्कुल मेंटेनेंस नहीं करते हैं। जो पॉइंट्स अभी आगे बताऊंगा वो भी ध्यान रखना है आपको, जिससे कि आप कह सकें कि मेरा स्ट्रक्चर 100 ईयर्स कहीं जाने वाला नहीं है। प्रोवाइड छोटी छोटी चीज़ें हैं उनको हमें ध्यान देनी है। स्ट्रक्चरल मूवमेंट सेटलमेंट, अनफॉर्चुनेटली अगर डिफरेंशियल सेटलमेंट हो गया देन कुछ प्रॉब्लम आ सकती है। अदरवाइज हमारे ज़्यादातर स्ट्रक्चर सिंपली सपोर्टेड हैं, छोटे छोटे होते हैं, तो उसमें थोड़े मोड़े सेटलमेंट से कुछ नहीं होने वाला है। कंटिन्यूस स्ट्रक्चर में वो प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। देन लैक ऑफ रेगुलर मेंटेनेंस, देखिए लास्ट वाला जो पॉइंट है रेगुलर मेंटेनेंस, ये ग्रांटेड नहीं है भाई आपको, या आपने ब्रिज बना दिया और 100 साल तक कोई मेंटेनेंस नहीं करना है। हर साल आपको थोड़ा मोटा मेंटेनेंस करनी है। जो भी एक्सपोज्ड हो जाती है चीज़ें, उन चीज़ों को दूर करते रहना है, तभी आपकी स्ट्रक्चर चलेगी, अदरवाइज बेकार है। आप कितना अच्छा भी बना लो और 1-2 जगह से सुनो, अभी दिखाऊंगा मैं, कहीं से थोड़ी सी चालू हो गई, उसको हमने मेंटेन नहीं किया तो फिर वो आगे प्रॉब्लम करती रहेगी। तो सबसे पहले तो देख लें हम इंस्पेक्शन कैसे करें ब्रिज की। पहली प्रॉब्लम आती है कि अब ब्रिज में जाना है तो कैसे जाएं और क्या देखें, है ना। ये चीज़ हमें पता होनी चाहिए कि अभी जाना है इंस्पेक्शन करने। तो ये लिस्ट है, बहुत बड़ी ब्रिज है, तो मोबाइल ब्रिज इंस्पेक्शन यूनिट का फोटो दिखाया होगा, मैं आगे और दिखाऊंगा। मेन लिफ्टर होती है, लेडर्स होती है, आजकल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी ड्रोन चली हुई है ना। और बहुत बड़ी ब्रिज है, अगर केबल सस्पेंशन ब्रिज वगैरह है तो इंस्पेक्शन ट्रॉली होती है, वो यूज़ करना है। और अगर नदी बह रही है, पानी भरा हुआ है, आपको बोट्स की भी ज़रूरत होती है। कहीं बोट्स भी नहीं काम करते तो हाई कैपेसिटी वाली राफ्टर्स की भी यूज़ करनी पड़ती है। तो ये सब चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगा। ये आपके दिमाग में होना चाहिए कि आपकी स्ट्रक्चर कितनी बड़ी है, तो उसके हिसाब से आपके पास क्या क्या इंस्पेक्शन चीज़ें होनी चाहिए, है ना। तो जस्ट ये तो हम कुछ फोटोग्राफ्स देखेंगे इस पर।
ये सभी वो है, जैसे पहला मोबाइल ब्रिज इंस्पेक्शन यूनिट है, लेफ्ट में लेडर्स है, केबल सस्पेंशन है, तो रोप एक्सेस है, ड्रोन है, तो इस तरह की चीज़ें होती हैं। ओके, ये मोबाइल ब्रिज इंस्पेक्शन यूनिट है। देखिए अगर बहुत बड़ी बड़ी ब्रिज हैं, काफ़ी हाई पियर्स है ना, तो वहाँ हम उसके गडर्स बेरिंग्स वगैरह नहीं देख सकते, तो बेसिकली अपन को इस तरह का कुछ अरेंजमेंट चाहिए। तो ये जरूरी है, अगर जिनके चार्ज में बड़ी बड़ी ब्रिजेज हैं, वैसे सभी गवर्नमेंट ट्राई कर रही हैं कि एक मोबाइल ब्रिज इंस्पेक्शन यूनिट होना चाहिए, और हमारे मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के पास है। ये आपके नॉलेज के लिए, अगर आपको किसी को कभी जरूरत पड़ती है तो आप कोऑर्डिनेट कीजिएगा, आपको ये मोबाइल ब्रिज इंस्पेक्शन यूनिट मिलेगा। एमपी गवर्नमेंट के पास एक है, हमने जगदलपुर में टेस्ट करते समय मोबाइल ब्रिज इंस्पेक्शन यूनिट मंगवाया था, और वो रायपुर से ही गई थी, नहीं वो छत्तीसगढ़ में था, वो छत्तीसगढ़ के पास है, एमपी का मुझे चेक करना पड़ेगा, छत्तीसगढ़ के पास, तो वो जगदलपुर से सेक्शन था। यहाँ भी होगा, क्योंकि एक बार निकला था कि हर एक स्टेट को एक एक लेनी है, उसमें छत्तीसगढ़ ने नहीं लिया था और उनका वर्किंग पे है, तो आप उनसे भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं, कोई मना नहीं करेगा। गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट वाली बात होती है, कोई मना नहीं करेगा कि आपको एक वीक 10 डेज के लिए स्पेयर ना कर सकें, क्योंकि ये ऐसी चीज़ नहीं है जो डेली यूज होती रहे, ये कभी कभार यूज होती है जब बड़ी बड़ी स्ट्रक्चर्स होती है, तो वो यूज करना चाहिए। इससे फायदा ये होता है कि जैसे देखिए बेरिंग, अगर हमने ब्रिज बना दिया छोड़ दिया, तो ये जो इलास्टोमेरिक टाइप बेरिंग है ना, जो रबर टाइप का देख रहे हैं आप, रबर टाइप है ये, इस तरह के, इसको हम इलास्टोमेरिक बेरिंग कहते हैं। परंतु अगर उस बेरिंग पे पानी वगैरह पड़ रहा है, जनरली क्या होता है, जो पियर हेड है ना, एबटमेंट है, उसमें इतनी सारी मिट्टी और धूल धक्कड़ सब चीजें होती है कि वो बेचारा कंटिन्यूस ढका रहता है, बेरिंग तो दिखते ही नहीं है। जब आप जाओगे देखने, आपको केवल मिट्टी और गिट्टी और यही सब दिखाई देंगे वहां पर, जो हर 5 साल में हम बेरिंग कोट करते हैं ना, या ऊपर के बेरिंग कोट बीसी का करते चले जाते हैं रोड्स पे, उसके कुछ गिरे हुए मिलेंगे। तो मैं सबसे रिक्वेस्ट ये करूंगा कि आपकी बेरिंग क्लीन होनी चाहिए भाई। तो उसका एक ही तरीका होता है, जब भी ब्रिज बन रहा है लास्ट पे आप बोलिए, जो भी साइड पे है, जो भी बना रहा है, कि आप मुझे सभी एबटमेंट और पियर हेड और एबटमेंट हेड के फोटो सबमिट करेंगे कंप्लीशन रिपोर्ट के साथ। तो जब वो फोटो देगा ना, तो आपको क्लियर होगा उसने सफाई किया है कि नहीं। अदरवाइज 95% ब्रिजेज में ये पाया गया है कि कोई भी कॉन्ट्रैक्टर एबटमेंट पियर हेड कुछ नहीं क्लीन करता और ऐसे ही छोड़ के चला जाता है। जब आप 25 साल बाद जाते हैं इंस्पेक्ट करने, तब आपको वो क्लीनिंग करवानी पड़ती है। जब ये स्थिति रहेगी तो फिर कैसे हम एक्सपेक्ट करें कि हमारी स्ट्रक्चर प्रॉपर चलती रहेगी। तो सभी से रिक्वेस्ट है, जिसका भी कंप्लीशन सर्टिफिकेट जमा होगा स्ट्रक्चर्स का, उसको बोलना है भाई एबटमेंट और पियर हेड के क्लीन फोटो चाहिए मुझे, जिसमें बेरिंग चमकता हुआ नजर आना चाहिए। ओके ना, को दिखना तो चाहिए कि ये बेरिंग है, नहीं तो आपको क्या दिखेगा, उसकी फोटो में बेरिंग दिखेगा ही नहीं अगर क्लीन नहीं है तो इसलिए भी जरूरी है। फिर कभी भी कंप्लीशन सर्टिफिकेट इशू करने के पहले पूरी स्ट्रक्चर को एक बार अच्छी तरह देख लेना है। मतलब अभी समझो बर्थ ही हुआ है स्ट्रक्चर में, और मान लीजिए कुछ डिफेक्ट हमने छोड़ दिया, तो एटलीस्ट ठीक है, चलो अभी हुआ है, जो हो सकता है वो प्रिकॉशनरी मेजर्स लिया जा सकता है। अगर आपने कंस्ट्रक्शन एंड करके पूरा इंस्पेक्ट नहीं किया स्ट्रक्चर्स को, खुद किया हो या थर्ड पार्टी किया हो, जिससे भी नहीं किया है, तो उसमें जो भी डिफेक्ट्स हैं वो एज इट इज होंगी। और वो मैं आगे दिखाने वाला हूँ वो डिफेक्ट कितने भयंकर होते हैं जो हम छोड़ जाते हैं ना, कि देखे ही नहीं यार, चलो जल्दी जल्दी में कर दिया। ये देखिए, ये हल्का सा आपको ये दिख रहा है ना, हनी काम, ये एरिया जिसमें रीएनफोर्समेंट एक्सपोज्ड है। तो इस तरह के जो छूटे होते हैं, इनके परिणाम बाद में बहुत भुगतने पड़ते हैं। तो ये सब चीज़ें देखनी है आपको। ये है जैसे मोबाइल ब्रिज इंस्पेक्शन यूनिट का, कई जगह बैराज होते हैं ना, तो बैराज में भी इंस्पेक्शन करना पड़ता है, उसमें ये बहुत यूजफुल है। आपको ऐसा लगेगा कि भाई हम कैसे इसको इंस्पेक्शन करें, तो ये यूनिट देखिए, बहुत ही कंफर्टेबल है, आप कॉन्फिडेंटली करेंगे इसमें, मतलब आपको डर नहीं लगता है। इस तरह से प्रॉपर यूनिट होना, तो नीचे जाके देखने में देखिए इसके अंदर भी पानी का लेवल बहुत कम है, कई जगह ये आर्म नहीं जा सकती, देन आपको दूसरा अप्लाई करना है। जैसे ये है, देखिए यहाँ आपका ये क्लियरेंस कम हो जाता है, अभी तो अच्छा खासा है।
ये लेवल इनके कम ज़्यादा होते रहते हैं टाइम के हिसाब से, जितना हाइड्रो पावर यूनिट की डिमांड होती है उसके हिसाब से वो वाटर छोड़ते हैं। तो वाटर जिस समय छोड़ते हैं ये आपका और रिड्यूस हो जाता है। ये जो हेड क्लियरेंस है ना, ये हेड क्लियरेंस ये कभी कभी इतना कम हो जाता है कि आपको लेट के जाना पड़ता है उसके अंदर जाने के लिए। दो गर्डर के बीच में जब वो करेंगे जब भी आपको बैठ के ठीक से देखना है। तो ये सिचुएशन के हिसाब से राफ्टर भी यूज हो जाता है इंस्पेक्शन के लिए बड़े उसमें। देन मोबाइल ब्रिज इंस्पेक्शन से आप बड़ी आसानी से कुछ भी इंस्पेक्ट कर सकते हैं। कुछ इंस्ट्रूमेंट वगैरह लगाना है तो लगा सकते हैं। आपका मेन लिफ्ट देखिए, इस तरह का जो भी आपका व्हीकुलर अंडरपास वगैरह है उसका इंस्पेक्शन आराम से कर सकते हैं। ओके, ये भी काम आता है। इवन मतलब जो आपका हाइड्रा होता है ना, हाइड्रा के एंड में आप एक, ये जरूरी नहीं है मशीन हो, आप अपना मेन लिफ्टर बना सकते हैं। हाइड्रा है, हाइड्रा के एंड में एक आपने प्लेटफॉर्म बनवा के जस्ट पिन से होल्ड करा दिया तो आपका मेन लिफ्टर तैयार हो जाएगा। अपना जुगाड़ का तो सिस्टम है ना भाई, ऑल इंडिया जुगाड़ ही तो चलती है, तो वो एक जुगाड़ है, वो कर सकते हैं। तो जुगाड़ में तो अपन माहिर ही हैं, तो किसी तरह हम मतलब ऊपर तक पहुंचा देंगे। देखिए क्रैक्स वगैरह क्या है 5-6 मीटर नीचे से नहीं दिखाई देते हैं। आपको क्रैक को देखना है तो आपको आपकी स्ट्रक्चर की डिस्टेंस जो है आपके हाथ से टच होनी चाहिए। ये डिस्टेंस पे रखेंगे तब आप उनमें जो क्रैक्स है उसको प्रॉपर ऑब्जर्व कर सकेंगे। तो इसलिए इस तरह का प्लेटफॉर्म चाहिए जो आपको एलिवेटेड करके आपके स्ट्रक्चर तक पहुंचा दे ऊपर तक। मेन लिफ्टर जुगाड़मेंट से आप इस तरह का कर सकते हैं, लेडर्स जहां पॉसिबल है कर सकते हैं। ओके, फिर आगे बढ़ते हैं। यह ड्रोन वाला था, कहाँ चला गया भाई, इसमें पता नहीं कुछ लैगिंग हो रही है या कोई नहीं, आगे बढ़ाते हैं। ड्रोन से भी पिक्चर लिए जा सकते हैं और उसको प्रोसेस कर लेते हैं तो एक्चुअल ब्रिज का स्ट्रक्चर तैयार कर सकते हैं। ये ड्रोन की पिक्चर है, उसको असेंबल करके फिर उसमें कन्वर्ट कर देते हैं ब्रिज के जो फोटोग्रामेट्री जो पढ़ते थे हम लोग। अच्छा, ये एक एक क्लिक करके आएगा, छोड़ो जी आगे बढ़ाओ। हाँ, उसके बाद अब आपने एक्सेसिबिलिटी का तो प्रॉब्लम हल कर लिया कि हम ब्रिज पे पहुंच जाएंगे, ठीक है ना भाई। आप अपने ब्रिज पे पहुंच पाओगे कि नहीं, इतना देखने के बाद क्या करना है ये पता अभी देखेंगे। अभी हमको तो ब्रिज के पास पहुंचना है, तो ब्रिज के पास पहुंच गया ना भाई। कोई ऐसा बंदा तो नहीं जो अपने ब्रिज पे एक्सेस नहीं कर सकता। ये सब देखने के बाद कुछ जुगाड़ तो कर ही लोगे ना भाई, ठीक है ना। तो आप अब ब्रिज पे पहुंच चुके हैं, अब देखेंगे कि हमें इंस्पेक्शन क्या करनी है ना। तो सबसे ऊपर देखिए, सबसे छोटा एलिमेंट है ड्रेनेज स्पॉट, सबसे नेग्लेक्टेड एलिमेंट, सबसे लास्ट में बनाने वाला, कई जगह बिना बनाए चले जाने वाला। आप बहुत से नए ब्रिज में पाएंगे कि ड्रेनेज स्पॉट लगाया ही नहीं, चला गया, और मैंने उसको नंबर 1 दिया है। अगर आपकी ड्रेनेज स्पॉट सही नहीं है तो आपकी किडनी काम नहीं कर रही है, और आपकी किडनी काम नहीं कर रही होगी तो उसी से पूछिए जिसकी प्रॉब्लम है किडनी की, उसको कितनी प्रॉब्लम होती है। तो वो ड्रेनेज स्पॉट का फंक्शन है भाई स्ट्रक्चर में। एक्सपांशन जॉइंट दूसरा नंबर। एक्सपांशन जॉइंट में आप बहुत जगह पाएंगे कि बहुत ही नेग्लेक्टेड कंडीशन में, आगे मैं पिक्चर दिखाऊंगा कि कितना नेग्लेक्टेड कंडीशन में अपने देश में एक्सपांशन जॉइंट्स हैं, ड्रेनेज स्पॉट्स हैं, और उसका क्या कॉन्सिक्वेंस होता है स्ट्रक्चर्स पे, और बहुत बड़ी पेनाल्टी लगती है बाद में। बेरिंग्स, वेजिटेशन ग्रोथ हम मान के चलते हैं कि ये तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हमें काटने ही नहीं देगा, हम अपने ब्रिज पे ही वेजिटेशन ग्रोथ करा देते हैं। उसके नीचे तो कराते ही कराते हैं, ब्रिज के ऊपर भी वेजिटेशन ग्रोथ मिलेगा आपको बहुत सारी ब्रिज में, जो 40 साल से कोई गया ही नहीं। जब आप इंस्पेक्ट करने जाओगे तो पहला आदमी होगा ब्रिज के अंदर घुसने वाला, है ना, तो वहाँ भी वेजिटेशन ग्रोथ आ जाता है। पियर एबटमेंट्स तो इतने गंदे पड़े होते हैं कि 2-3 दिन क्लीनिंग में निकल जाते हैं इंस्पेक्शन के पहले, उसके बाद फिर सुपर स्ट्रक्चर्स। तो ये है जी ड्रेनेज स्पॉट, देखिए। और न्यू कंस्ट्रक्टेड ब्रिज है, उन्होंने ये आपका ड्रेनेज स्पॉट्स, ये देखिए ड्रेनेज स्पॉट ऑलमोस्ट लगाने ही भूल गया है। इसमें लगता नहीं कि ड्रेनेज स्पॉट लगा है, लगा है तो वो प्रोजेक्टेड नहीं है। तो एक चीज आज से आप याद कर लीजिए, ड्रेनेज स्पॉट हमेशा कम से कम 1 फीट प्रोजेक्टेड होना चाहिए। ओके, अगर हाइट कम है तो, अगर हाइट आपकी 15 मीटर करीब है पियर की, तो फिर उसको आप आधा मीटर में कन्वर्ट कर दीजिए।
क्योंकि जब भी हवा तेज चलती है तो वो साइड में इस तरह का आपको देखिए इस तरह से करती चली जाती है, और ये अगर आपने 5 साल के लिए छोड़ दिया तो यहाँ 5 साल बाद आपको पूरा कंक्रीट करोडेड और उसके लेयर्स नीचे गिरते नजर आएंगे। तो वो नौबत क्यों आना, आप पहले ही कम से कम 1 फीट तो करेंगे ही। बहुत हाइट है तो इसको बढ़ा दो यार, थोड़ा 2 फीट कर दो, आधा मीटर कर दो, तो उससे आप हमेशा 100 ईयर्स के लिए सुखी रहेंगे। अदरवाइज 5 साल के बाद आपकी प्रॉब्लम स्टार्ट होने वाली है, इस फॉलिंग होगी, 10 साल में करोजन प्रॉपर आ जाएगा और आपके लेयर्स नीचे गिरने लगेंगे। अगर नीचे कोई यूज करता है तो आपकी कंप्लेन ऊपर तक पहुंच जाएगी कि एक आपके सिर पे भी गिर गया है, तो वो देखना है अपन को कि ये नौबत नहीं आनी चाहिए। चलो भाई, दूसरा ये देखिए, अगर आपने नेग्लेक्ट किया ड्रेनेज स्पाउट को, ये ज़्यादा पुरानी स्ट्रक्चर नहीं है, 15 ही साल हुए हैं इसको, और 15 साल में देखिए उसके ड्रेनेज स्पॉट पे कोई ध्यान नहीं दिया गया, और कोई ध्यान न देने के कारण आपकी स्थिति देखिए क्या कर दिया इसने। इवन नीचे आई है, ये तो पियर हेड के नीचे, ये पीएस का भी देखिए क्या हाल कर रखा है। तो 15 साल की स्ट्रक्चर्स में आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? ये क्यों हो रहा है? क्योंकि ड्रेनेज स्पॉट आपका प्रोजेक्टेड नहीं है, जस्ट फ्लश्ड है सरफेस के साथ, और वो पानी कंटिन्यूस बॉडी से हो रहा है। इसलिए मैं केवल एक लाइन बोलता हूं कि अगर हमारी स्ट्रक्चर्स को 100 ईयर्स चलानी है तो वाटर और स्ट्रक्चर का इंटरेक्शन नहीं होना चाहिए। देयर शुड बी नो इंटरेक्शन बिटवीन वाटर एंड स्ट्रक्चर। अब आप जानो आपको कैसे करना है। आपका पानी कहीं भी टच नहीं करना चाहिए स्ट्रक्चर्स को बनने के बाद। अगर आपका स्ट्रक्चर तैयार हो गया, इसके बाद पानी की कोई भी बूंद उस पर नहीं पड़ने चाहिए, तब तो आपका स्ट्रक्चर 100 ईयर्स चलेगा। और अगर आपने भगवान भरोसे छोड़ दिया है कि हमने तो बना दिया 100 ईयर्स के लिए, तो फिर वो तो 25 साल में डिमोलिश होना ही होना है। ये 15 साल है। अभी जो फोटो दिखा रहा हूं मैं, इसकी एज केवल 15 ईयर्स है, और 15 ईयर्स में जब हम रिकमेंड करने गए तो एक सिमिलर स्ट्रक्चर को पहले ही डिमोलिश कर चुके थे। वो उसमें इतनी ज्यादा करोजन थी, गुजरात की बात है, इतनी ज्यादा करोजन थी कि वो पहले ही हम बोले नहीं यार, अब हम आ गए तो हम डिमोलिश नहीं होने देंगे, प्रॉपर रिहेबिलिटेट करके इसको कम से कम 25 साल और चलाएंगे हैं। तो मतलब फिर बेमतलब का काम बढ़ता है ना, और केवल किस लिए? ड्रेनेज स्पॉट को हम मेंटेन नहीं कर रहे हैं। और कितना बड़ा काम है यार, शुरू में ही कर दो ना, 1 फीट या आधा मीटर निकाल दो, अगर हाइट ज्यादा है तो आधा मीटर निकाल दो, अदरवाइज 1 फीट बहुत है कम हाइट के लिए। 10 मीटर तक के लिए तो कोई वो नहीं है, ज्यादा हाइट के लिए इसलिए बोलो, जब हवा चलती है ना तो आपके प्रोजेक्टेड उससे साइड से भी स्ट्रक्चर्स में पड़ेगी, इसलिए अगर आपने ज्यादा हाइट किया है तो वो स्ट्रक्चर तक नहीं जाने देगी, फिर नीचे चली जाएगी। तो ये क्लियर है भाई। ड्रेनेज स्पॉट हमेशा बंद मिलते हैं, किसी भी ब्रिज में चली जाइए, किसी भी कलवर्ट में चली जाइए, किसी में छोटे से छोटे, उसमें हमेशा ड्रेनेज स्पॉट होते हैं, परंतु फंक्शनिंग नहीं होते हैं, है ना। तो आपके भाई जो भी चार्ज में है, ड्रेनेज स्पॉट को नंबर 1 मैंने इसलिए दिए रखा है कि सबसे वर्स्ट इसी को भुगतना पड़ता है पूरे स्ट्रक्चर्स। अगर इसकी फंक्शनिंग ठीक नहीं है तो आपकी किडनी काम नहीं कर रही है। अब आप समझ लो कितनी बड़ी कोरिलेशन है दोनों का। ओके, तो ड्रेनेज स्पॉट का फंक्शन क्लियर है भाई, ये आपको इंस्पेक्ट करना है और प्रॉपर ये करनी। देखो, और एक लोकेशन है, कभी कभी हम ऐसी गलत जगह पे ड्रेनेज स्पॉट बना देते हैं कि वो बाउंड है। देखिए यहां क्या कर रखा है हमने, जो कैंटिलीवर ब्रैकेट है ना, सुपर स्ट्रक्चर में कैंटिलीवर ब्रैकेट है, उस कैंटिलीवर ब्रैकेट के ऊपर ही ड्रेनेज स्पॉट दे रखा है। अब वो ब्रैकेट को तोड़ेगा ही तोड़ेगा 10 साल के बाद, और फिर बाद में कहोगे कि यार इसका तो क्रैश बैरियर नीचे गिर गया, क्या हो गया? जो ब्रैकेट संभाल रहा था वो बेचारा खुद ही चला गया है, तो फिर संभालेगा कैसे, है ना। तो ये स्टेज आ जाती है। तो जो अगर बाद में भी आप देखते हो तो इसको तो बंद करा दो भाई। इस तरह का अगर कोई लोकेशन है जो ड्रेनेज स्पॉट है वो हमारे ब्रैकेट वगैरह के जस्ट ऊपर है, तो उस ड्रेनेज स्पॉट को बंद करा दो ना, एक होल करा दो बगल में आधा मीटर की दूरी पे, और उसमें लगा दो, हैं, ठीक है ना। तो ये क्लियर है भाई, ड्रेनेज स्पॉट की ऐसे पोजीशन नहीं होना चाहिए जो डायरेक्ट हमारे पियर हेड में या फिर नीचे ब्रैकेट जो लगे हैं उन पे पानी गिराए। ओके, क्लियर है।
अच्छा जी, चलो आगे बढ़ते हैं। देखिए एक्सपांशन जॉइंट का भी योगदान यहाँ नजर आ रहा है। एक्चुअली अगर आप यहाँ देखेंगे ये एक्सपांशन जॉइंट है, तो एक्सपांशन जॉइंट को देखने के लिए क्या है, आप नीचे से देखेंगे तो आपको अगर उसमें लाइट दिखाई देती है, इसका मतलब अंदर जो सील लगी हुई है, जनरली इसमें एक सील होता है, रबर सील होता है, वो रबर सील डैमेज हो चुकी है, अदरवाइज ये लाइट दिखाई नहीं देगा आपको। या फिर दूसरा ये होगा कि वो डेब्रिस वगैरह से भरी हुई है, मिट्टी से भरी हुई तो दिखाई नहीं देगा। तो मिट्टी वाला तो काम आप ऊपर से कर ही लेंगे कि भाई आप ये मिट्टी डेब्रिस सब ये हटाना है, वो तो ऊपर इंस्पेक्शन करके बता देंगे। बट एक बार नीचे जाके देखना जरूरी है, वो तो हटा देगा ऊपर से। और नीचे से अगर लाइट दिखाई देती है, अगर नीचे से ये लाइट दिखाई दे रही है, इसका मतलब क्लियर कट होता है कि सील काम नहीं कर रही। ओके, तो ये भी हमें देखना है, नीचे से भी देखना है, ऊपर से भी देखनी है, ठीक है ना। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि ब्रिज के नीचे जाना है और कौन साइड से जाना है ये सब पता होना चाहिए, नहीं तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। ओके, अगर आप नहीं देखते हैं तो क्या होगा, ये देखिए आपका पियर हेड इस तरह से चल रहा है, ये 2-3 साल बाद का मामला है, आपने फिर भी केयर नहीं किया, ये आपका 7-8 साल में ऐसा चल हो जाएगा, यहाँ से पैचेस फिर निकलने की नौबत में आ जाएंगी। तो जितना नेग्लेक्ट करते जाएंगे, जो आपकी रूटीन मेंटेनेंस जरूरत है, केवल क्यों हो रही है गड़बड़, ये गड़बड़ हो रही कि मेरी रबर ट्यूब फटी हुई है ऊपर से, अगर मैं रबर ट्यूब बदला दूं तो फिर भाई ये पियर हेड में इस तरह से पानी आएगा नहीं। मैं अपने ड्रेनेज स्पॉट का अगर कोई एक आध लोकेशन गलत है तो उसको सही कर लूँ, ड्रेनेज स्पॉट को क्लियर कर दूँ, तो ये दोनों टाइप की जो डिफेक्ट्स हैं वो फिर मुझे हार्म नहीं कर सकती। चलो जी आगे बढ़ें। कई जगह अच्छा किया है उन्होंने, ड्रेनेज स्पॉट से उसने पूरा का पूरा इस तरह से, जैसे घरों में अपन पाइपिंग करते हैं ना, इस तरह से पाइप कर दिया ड्रेनेज स्पॉट के लिए। आप देखेंगे, ये देखिए उसने पूरा लिया, पाइप नीचे ले आया और रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए एक पिट भी बना दिया। ये बेस्ट है, बट बेस्ट तो है, ऐसे नहीं छोड़ देने हैं। अगर 2 साल बाद मेरा ये लिंक टूट गया है बीच में तो उसको प्रॉपर करना है, अदरवाइज तो फिर इतना बड़ा पाइप लगा दिया, उससे तो अच्छा था आधा मीटर पाइप ही छोड़ दिया होता ऊपर। उसके बाद जाके मैंने अपने एबटमेंट या पियर को खराब करने में लग गया, है ना। तो ठीक है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग करना है हमें, तो उसको मेंटेन भी करना है भाई। पाइप अगर बीच में टूट गई तो चेंज करवाने हैं, ये नहीं कि हमने छोड़ दिया 5 साल 10 साल अनअटेंडेड। तो ये छोटी छोटी गलतियां हैं जो होती रहती हैं, होती रहेंगी भी, बट कम होनी चाहिए। अब अभी तक हमने ड्रेनेज स्पॉट कंप्लीट किया। अब देखिए एक्सपांशन ज्वाइंट, एक्सपांशन ज्वाइंट को आप अपनी बॉडी से कंपेयर करेंगे तो आपके नोज के इक्विवेलेंट है। अपनी अपनी नाक दबाइए 2 उंगलियों से, कौन कितने मिनट तक कर सकता है देखते हैं, दबा के देखिए, 1-2 लोग देखिए कितना प्रेशर बॉडी में डेवलप होता है। अपनी नाक दबाने से 2 उंगलियों से हम कितने मिनट तक सरवाइव कर सकते हैं। मुंह से सांस नहीं लेने, नहीं बेवकूफ बनाने वाली कार्यक्रम कि नाक तो दबा दिया, मुंह से सांस ले रहा है, मुंह से भी सांस अलाउड नहीं है, जो नॉर्मल फंक्शन है वही करनी है। तो आप पाएंगे कि 1 मिनट के बाद तो लगने लगता है कि अब मेरी बॉडी में तो यार काफी स्ट्रेसेस आ गई हैं। तो ये काम होता है एक्सपांशन ज्वाइंट का। अगर आपने एक्सपांशन ज्वाइंट को अगर आपने देखिए क्या किया यहाँ मूर्खता, एक्सपांशन ज्वाइंट के बीच में स्मूथ मूवमेंट ऑफ व्हीकल के लिए चैनल डाल दिया उसने कि खटर पटर ना हो, चैनल डाल देते हैं। तो अगर फिर कभी उसको एक्सपांड होना होगा, विंटर से समर पे जाएगा तो कहाँ जाएगा बेचारा। तो ये तो और गलत तो ही है कि नहीं मेंटेन हो रही थी, बट और बहुत बड़ी गलती है कि उसमें और चैनल भी डाल दिया हमने ऊपर से। तो इस तरह का काम नहीं होना चाहिए, प्रॉपर ट्रीटमेंट ही करना है हमें, करना है तो, अदरवाइज इस तरह की गलती नहीं। और देखो ऊपर से और वो किया उसने यहाँ पर वेल्डिंग भी कर दिया, स्ट्रिप्स से भी वेल्डिंग कर दिया है। तो इस तरह का काम नहीं करना है भाई। एक्सपांशन जॉइंट को एक्सपांशन जॉइंट के रूप में ही होना चाहिए। उसका फंक्शन ये है कि गैप हो, जिससे उसको जब भी मूवमेंट करने की जरूरत पड़े मूवमेंट कर सके। अगर ये स्थिति हो गई तो प्रॉपर इन्वेस्टिगेट करके उसको फिर से करनी है, एक्सपांशन जॉइंट फिर से डाल देनी है, हमेशा के लिए खत्म करनी है ना। अन्य से केवल एक चैनल डाल दिए तो उससे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई, हमें उसको इंस्टॉल करनी पड़ेगी। अगर ये गैप किसी कारण से बढ़ गया तो पहले तो ये देखेंगे क्यों बढ़ गया है, अगर एसेंशियल है तो ठीक है, फिर से कंक्रीटिंग कर देंगे। ओके, अच्छा ये गलती भी करते हैं हम लोग, हाईवे इंजीनियर्स।
हाईवे इंजीनियर्स स्ट्रक्चर्स की कभी ध्यान नहीं रखते हैं, उन्हें केवल चाहिए स्मूथ राइडिंग सरफेस, वो बस नीचे कभी नहीं जाते, उनको ब्रिज से कोई मतलब नहीं है, जब तक मतलब नहीं है जब तक वो टूट ना जाए, जिस दिन टूट जाएगा उस दिन से उनका सोना बंद हो जाएगा। तो ब्रिज को टूटने का इंतजार करते हैं वो, और इस चक्कर में क्या करते हैं वो, हर 5 साल में एक लेयर 50 mm का BC का डालते चले जाते हैं। हमें केवल 50 mm BC ही हमने डिजाइन में लिया है, उसके बाद हमने 100, 100, 150, 200 mm थिक का हमने डिजाइन में नहीं लिया है। अपने डिजाइन में जो डेड लोड लिया था, हमने कंसिडर किया था, वो 50 BC का किया था। तो इसके बाद जितना हाईवे इंजीनियर्स डालते जा रहे हैं, ये सब मूर्खता का कार्यक्रम है। आप हटाइए, उसमें नया रिले कीजिए। वो नहीं है कि मेरा ये वो है, मैं 5 साल बाद फिर, तो आप अगर 20-25 साल बाद जाते हैं ना, तो आपको 150 से 200 mm थिक BC लेयर मिलती है। तो आप देखिए, आपने अपने स्ट्रक्चर को कितना अननेसेसरी लोड से बर्डन डाल चुके हैं उस पर। तो BC लेयर के ऊपर लेयर नहीं डालना, चलो यार एक डाल लो, बट ये नहीं है कि मैं 4 लेयर और 5वां लेयर उस पर डाल दूं। ओके, तो हमें BC लेयर पे लेयर नहीं डालते चले जाना है, और फिर उनको एक्सपांशन जॉइंट तो दिखाई ही नहीं देता, इसके ऊपर और फिर डाल देते हैं, तो एक्सपांशन जॉइंट का फंक्शन भी खत्म हो जाता है और डेड लोड भी बढ़ाए चले जाते हैं। तो इस तरह का काम नहीं होना चाहिए, बहुत ही गलत है। या देखिए आप, अगर आप अपने एक्सपांशन जॉइंट को प्रॉपर, ये जस्ट स्टार्टिंग आप ब्रिज पे है, ये नहीं मेंटेन्ड है, यहां से वाटर जाएगा, वाटर जाके ये एबटमेंट का क्या हाल कर दिया इसने, थोड़े दिन बाद आपका एबटमेंट ही, कई जगह एबटमेंट में काफी क्रैक्स आ जाते हैं और उसकी स्टेबिलिटी ही खराब हो जाती है, एबटमेंट नया बनाना पड़ जाता है। और एरर कहां पर है, केवल हमने एक्सपांशन जॉइंट मेंटेन नहीं कर रहे हैं, हम इस कारण से पानी यहां से जा रहा है और यहां से निकल रहा है और इरोड करता चला जा रहा है, तो ये कई जगह बड़ी प्रॉब्लम में कन्वर्ट हो जाती है। तो इस तरह की प्रॉब्लम हमें नहीं होने देना चाहिए, एक्सपांशन जॉइंट को प्रॉपर टेक केयर करते रहना चाहिए, बीच बीच में सफाई कराते रहना चाहिए। इस तरह का बेरिंग्स, आप देखिए बेरिंग की क्या हालत है, ऐसा लगता है कि कभी किसी ने इंस्पेक्शन किया होगा इस ब्रिज की बनने के बाद। ये देखिए, कोई ब्रिज 20 साल के हैं, कोई 30 साल के हैं, कोई 40 साल के हैं। इनकी बेरिंग की हालत ऐसी है कि आप एज्यूम कर सकते हैं कोई 50 साल से भी नहीं गया होगा वहां पर। अगर आप नहीं जाएंगे, देखिए क्या होता है, ये अगर 5 साल बाद है तो 7वें 8वें साल में जाएंगे तो ऐसा हो जाएगा, ये गया भी हो जाएगा। यहाँ है बेरिंग, खत्म हो गई। ये देखिए क्या कंडीशंस है। तो इनका आपने देखा होगा, इस तरह की जो बेरिंग्स होती है, रोलर रॉकर, इनको एक बॉक्स में बंद होते हैं, वो बॉक्स तो दिखाई ही नहीं दे रही, कोई ले गया बॉक्स, और उसके बाद उस बॉक्स के अंदर ग्रिजिंग की जाती है जिससे रोलर रॉकर प्रॉपर मूव कर सके। परंतु जब हम जा ही नहीं रहे, देख ही नहीं रहे, तो क्या हो रहा है क्या पता, सीधा जाएंगे जब एकदम कहीं ऊपर में काफ़ी क्रैक्स वगैरह आ जाएगी या कोई आर्म का कोई पार्ट गिर जाएगा। इस तरह का बॉक्स होता है, इस बॉक्स को खोल के देखना है भाई, 15 साल में तो देख लो एक बार कम से कम। ये इसके अंदर इस तरह से होता है, ये रॉकर एंड है, देख रहे हैं ना, वो इस तरह से अलाउड है, रोटेशन अलाउड है रॉकर में, ये रोलर है। तो अगर ये खुली है, करीब करीब ये 70-75 की कंस्ट्रक्शन है, तो ये तो 50 साल क्रॉस कर गया था। 50 साल बाद हमने खोला इसको, उसके पहले कभी खुली नहीं बनने के बाद। तो फिर ऐसे ही होता है भाई, वो आपका कुछ भी रहेगा, थोड़ा मिसअलाइंड हो जाता है कई जगह, ये अपने इससे आगे जाके गिरने की कंडीशन में आ जाती है। बेसिकली आइडिया है कि इसको इंस्पेक्ट करते रहना है। जैसे अब देखिए, वो जाते जाते अगर आपका आगे भी बढ़ जाता है, कई जगह आपको मिलेगी जिसमें वो रोलर को पूरा क्रॉस करने वाला है, कई में क्रॉस भी कर चुके रहते हैं और ऊपर में डिफ्लेक्शन के रूप में आता है कि ये 10 सेंटीमीटर नीचे आ गई। तो इसलिए बेरिंग्स को, जो अगर इस तरह का रोलर रॉकर पैक्ड बेरिंग है, तो 15 साल में तो देख लो भाई एक बार कम से कम, ग्रीजिंग करनी है उसको बीच बीच में। अच्छा, और भी देखिए बेरिंग्स में और क्या तमाशा है यहाँ, इसमें हम देख रहे हैं, देखिए कहीं भी कुछ भी कर दिया बेरिंग्स में आपने। यहां जैसे देख रहे हैं हम, यहाँ पर 4 बेरिंग्स पेडेस्टॉल दिख रहे हैं, बट चारों की शेप साइज सब अलग अलग।
क्या ऐसा हो सकता है डिजाइन में? ये सब बनाते समय ही मिस्टेक है, कुछ भी बना रहे हैं, कोई मोटा बना दिया, कोई छोटा बना दिया, कोई ऊपर बना दिया, कोई नीचे बना दिया, वो बनाते समय ही गड़बड़ कर रहे हैं। तो वो फ्यूचर में क्या होगा पता नहीं है। ये वाला जो नीचे देख रहे थे, यहाँ देखिए, यहाँ दूसरे बेरिंग्स ही गायब है। एक बेरिंग से ऐसा नहीं होता, एक बेरिंग होता है तो वो सेंट्रली होता है, ऐसा नहीं होता कि सेंट्रिक में आप एक बेरिंग प्रोवाइड कर दो, या एक बेरिंग ही गायब है, ठीक है। और यहाँ अगर इसको सेंट्रल बेरिंग भी होना था तो रियली सेंटर पे होना चाहिए। सेंटर कभी कभी फिक्स्ड दिया जाता है एक सिंगल बेरिंग, बट ये जो भी बेरिंग के फिगर्स हैं इसमें सब में ही डिफेक्ट्स हैं। पेडेस्टल ठीक से नहीं बनाना, बेरिंग का मिसिंग होना, जहां लगनी है वहां नहीं लगना। तो अगर कंस्ट्रक्शन के समय ही हम ये सब उपद्रव कर रखे हैं तो भविष्य में क्या होने वाला है भाई? अब बोलोगे यार 100 साल के लिए स्ट्रक्चर डिजाइंड है, तो डिजाइन क्या करेगा? हमें ही करना है, शुरू में जो भी करना है। ओके, आगे बढ़ते हैं। देखिए, मत कीजिए ठीक से, इसका जो पेडेस्टल है ना, हम बोलते हैं जी पेडेस्टल हमारा M40 ग्रेड का कंक्रीट होना है, बड़े ब्रिज की बात कर रहा हूँ, छोटे में चलो कोई बात नहीं। तो अगर उसकी स्ट्रेंथ ही प्रॉपर नहीं है तो क्या होगी? ऐसा क्रशिंग हो जाएगा, इसमें पेडेस्टल पूरा क्रश कर गया लोड आने से, है ना, पूरा ही चला गया वो। तो अब तो फिर उठा के फिर से इसको सही करना पड़ेगा, बट उसको देखेंगे आगे कैसे सही करेंगे। ये अपना वेजिटेशन ग्रोथ है भाई साहब, हरा भरा कार्यक्रम है। ये हरा भरा कार्यक्रम अलाउड नहीं है भैया स्ट्रक्चर्स पार्ट में, ना रिटेनिंग वॉल पे, ना हमारे किसी एबटमेंट पे, ना पियर पे। ओके, तो ये तो छोटे स्टेज में क्लियर कर देना है आपको, इतना बड़ा नहीं होना चाहिए। ये तो 10 साल हो गया कम से कम, इस पेड़ को तो देखने से ऐसा लग रहा है कि 10 साल से वेजिटेशन ग्रोथ पे कोई कंट्रोल नहीं किया गया। इसको हटा देना है भाई। इसमें क्या होता है, जो रूट्स होती है ना, वो रूट्स आपको रिटेनिंग वॉल तक को डिरेल कर देती है, उसका भी स्टेबिलिटी खराब कर देती है ना। तो वेजिटेशन ग्रोथ कहीं भी अलाउड नहीं है भाई, इस तरह का कार्यक्रम आप पूरा हटा दीजिए शुरू में ही। आपको आज फर्स्ट लेक्चर था जिसमें उन्होंने जियो टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन का बताया होगा, उसकी इंपॉर्टेंस देखिए इस ब्रिज को देख के लगती है कि वो जियो टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन, हम लोग सोचते हैं ना कि कभी तो यार कुछ देखा नहीं आज तक, इसको देखो आप, इस ब्रिज को देखो, ये जियो टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन सही नहीं होने के कारण है। जनरली हमारा कोडल प्रोविजन कहता है कि हमें जहां जहां पियर बनानी है वहां वहां हमारे बोर होल्स होने चाहिए जियो टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन की। मान लीजिए कई बार क्या होता है, बड़ी लंबी ब्रिज है, मान लो 2 किलोमीटर लंबी है, तो जियो टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन करने वाले, मान लीजिए आपका स्पान छोटा छोटा है, 300 का मान लें हम, तो करीब करीब 60-61 स्पान होंगे। तो हमारे बोर होल 61 जगह होना चाहिए था 61 प्लेसेस पे। वो इसलिए जरूरी है कि हमें पता नहीं होता कि किस लोकेशन पे क्या अंदर सॉइल की कंडीशन है। ओके, तो अगर जहां जहां पियर बननी है उसका जियो टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर नहीं है, जो आपका डेप्थ है, मान लीजिए आपकी वेल फाउंडेशन जानी है 30 मीटर, तो आप जाते हैं उसमें 45 मीटर तक, इसलिए जाते हैं कि नीचे देखना पड़ता है, हालो पोर्शन तो नहीं है नीचे। ओके, तो अब नीचे अगर हालो पोर्शन है तो कभी ना कभी ब्रिज को इस तरह से नीचे चले जाना है। ओके, तो आप लोग को ये ध्यान देना है, जो भी आपके चार्ज में ब्रिज बन रहा है उसमें देखिए कि जो जियो टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन हो रहा है वो कम से कम जहां जहां स्ट्रक्चर बनने हैं, एबटमेंट की लोकेशन आनी है, पियर की लोकेशन आनी है, वहां उसने बोर होल कर रखे हैं कि नहीं। देखिए इसमें नहीं किया, ये स्ट्रक्चर नीचे चला गया। एक छोटी सी गलती थी कि जियो टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन उसने क्या किया, जैसे मैंने बताया लंबा 2 किलोमीटर है, 61 प्लेस पे करनी थी, 30-30 मीटर का स्पान लेंगे तो 61 प्लेस पे आती है वो, तो 61 की जगह 6 प्लेस पे किया उसने। आप देखो, अगर 61 की जगह 6 पे करके आप ब्रिज खड़ा करना चाहेंगे तो कहीं ना कहीं तो गड़बड़ होना है ना भाई। तो जियो टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन आप प्रॉपर ही करवाइए जब भी कराते हैं। स्ट्रक्चर में भाई कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं चलेगा, स्ट्रक्चर वाली पार्ट में नो कॉम्प्रोमाइजेशन, जो करना है तो करना है, जियो टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन होना है तो होना है। ये जो स्टार्टिंग वाली फेज है ना, इस पर कोई कॉम्प्रोमाइज करिए ही नहीं आप। हाँ भाई, कितना तुम्हारे पीएस आ रहे हैं 10, 2 एबटमेंट 12 किया कि नहीं कम से कम, कितने डेप्थ का आपने वेल फाउंडेशन डिजाइन किया 30, आप 40-45 मीटर तक का सॉइल इन्वेस्टिगेशन किया कि नहीं। तो ये जो चीज़ें हैं ना,
ये हमें पहले ही ध्यान रखनी है, अदरवाइज बाद वाले क्या करेंगे बताओ, ब्रिज तो बन के चला जाएगा और बाद में फिर इस तरह की स्थिति आ जाएगी, है ना। तो जियो टेक्निकल का वो इंपॉर्टेंस है। आगे बढ़ते हैं। कभी कभी हमने सुना है कि कुछ एग्रीगेट्स घुलने वाले होते हैं, सॉल्युबल एग्रीगेट्स, पढ़ते बस है ना, परंतु ऐसा नहीं है केवल पढ़ते हैं। देखिए इस स्ट्रक्चर्स में सॉल्युबल एग्रीगेट्स हैं और वो कोर निकालने पे मिले हुए हैं, देखिए कितना हालो कोर मिला है ना, ये सॉल्युबल एग्रीगेट्स वाले वो है। तो इसलिए बोला जाता है कि ऐसे एग्रीगेट्स जिनकी टेंडेंसी सॉल्युबल है, वाटर में घुलने की टेंडेंसी है, ऐसे एग्रीगेट यूज नहीं करने चाहिए, है ना। तो इसलिए हम लोग बुक में पढ़ते थे कि हमें सॉल्युबल एग्रीगेट यूज नहीं करना है, इसलिए मैंने ये फोटो डाला जिससे आपको ये क्लियर होना चाहिए कि हाँ भाई, अगर ऐसा कोई एग्रीगेट आपको पता चल जाता है तो बिल्कुल अलाउ नहीं करेंगे। देखिए कितना हालो है, और पता इसमें एक पीयर में डालना चालू किए, आपको विश्वास नहीं होगा, एक पीयर में ही 15-16 लाख का मटेरियल अंदर डालना पड़ गया। एक पीयर में जो इंजेक्शन राउटिंग हुई उसमें इतनी ज्यादा गई क्वांटिटी कि एक पीयर में ही 15-16 लाख का आपने मटेरियल इंजेक्ट करा दिया। तो बाद में बड़ी दिक्कत होती है यार सुधारने के लिए, तो हम शुरू में ही प्रॉपर करें। इसलिए वो कॉम्पेक्शन की बात आती है ना, कॉम्पेक्शन बहुत एसेंशियल है। कॉम्पेक्शन में बाद में पता चल जाता है, जो टेस्टिंग एजेंसी होती है वो कोर निकालता है, कोर निकालने के बाद वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट करता है, वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट जैसे ही करता है उसको पता चल जाता है कि आपके कंक्रीट में कितने % वाइट्स हैं, और जैसे उसका चलो 3 तो बढ़िया वेरी गुड में आएगा, 5 तक भी कोई बात नहीं, बट आपकी रेंज 5 से 10 में गई तो करो भैया प्रेशर राउटिंग, करो इंजेक्शन राउटिंग, हर एक पीयर में डालो 5-5-10 लाख का केमिकल्स। तो ये नौबत नहीं आनी चाहिए भाई, कॉम्पेक्शन आपको करानी है साइट पे प्रॉपर, ओके। तो कॉम्पेक्शन हमारी प्रॉपर होनी ही चाहिए। ये हमने कुछ पॉइंट आउट किया है, देखिए जो कांताराव जी ने भी बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया था आपको करोजन के लिए। तो ये एक मैंने जस्ट आपको दिखाया है जो वाटर सीमेंट रेशियो है और इसका आपका स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट में। तो अपन साइट पे वाटर तो कंट्रोल करना ही पड़ेगा और कोई चारा नहीं है अगर स्ट्रेंथ आपको कंट्रोल करनी है, अदरवाइज देखिए ग्राफ कैसे डाउन होता है। ये स्ट्रेंथ की ग्राफ है, आपका वाटर सीमेंट रेशियो वर्सेस ये, जैसे जैसे आपका बढ़ता जाएगा, ये कैपिलरी उन्होंने एक्सप्लेन कर दिया। अगर आप मोटा मोटा समझना चाहें तो देखिए इस तरह का होता है, ये पानी का कितना क्या यूज होना है। अगर आप 100 ग्राम सीमेंट एज्यूम करिए तो इसमें केमिकल रिएक्शन के लिए 23 ग्राम वाटर चाहिए। अगर एक्चुअल देखें आपको 23 ग्राम वाटर चाहिए उसको, मतलब 0.23 मेरा वाटर सीमेंट रेशियो हो गए, ओके। मैं कुछ वर्केबिलिटी चाहूंगा, है ना, तो वर्केबिलिटी के लिए चलो 0.23 से हम चले गए भाई 0.4 तक चले गए, ओके। बट अब ये नहीं यार कि आप 0.7 तक भी 0.6 तक भी जाओ, उसके बाद का सबका सब एक्सेस वाटर है। 0.23 केवल केमिकल रिएक्शन के लिए है, उसके आगे तो हम थोड़ा सा वर्केबल कंक्रीट हो थोड़ा है, इसके लिए हमने चलो 0.4 मान लिया। उस वजह से डिजाइन में जो आएगा वही डालना है, बट इन जनरल कहीं डिजाइन नहीं करते हैं तो 0.4 मान के चलते हैं हम। परंतु अगर हम 0.6, 0.65, 0.7 तक जाते हैं तो वो सब क्या कहलाता है, एक्सेस वाटर। और वो एक्सेस वाटर क्या करेगा, पोरोसिटी में कन्वर्ट होना ही होना है। फिर आपका ना तो स्ट्रेंथ आएगा ना ड्यूरेबिलिटी आएगा। स्ट्रेंथ तो आएगा ही नहीं, M25 है तो M10 ही आएगा चेक करने पे, और ड्यूरेबिलिटी आपने 100 साल सोचा था 25-30 साल में चले ही जाएगा, ओके। तो भाई हमें ये वाटर सीमेंट रेशियो को तो पक्का कंट्रोल करना है, इसमें कोई दो मत नहीं है। चलिए आगे चलें। फिर कॉम्पेक्शन की बात आ गई, जितना अच्छा कॉम्पैक्ट कराएंगे वो तो फंडामेंटल ही है, कॉम्पेक्शन अच्छा होगा तो आप सुखी रहेंगे, है ना, पोरोसिटी कम रहेगी उसमें। तो पहला तो आ गया वाटर सीमेंट आपने कंट्रोल कर लिया, प्रॉपर जो डिजाइन्ड वाटर सीमेंट रेशियो है वही यूज किया। उसके बाद आपको कॉम्पेक्शन भी करनी है प्रॉपरली, ओके। ये थोड़ा सा ग्राफ दिखा रखा है कि वाट्स होगा तो किस तरह से देखिए कम होता चला जाता है, 5% भी होती है तो कितनी रिडक्शन हो जाती है, तो ये सब चीज़ें हैं। इसके बाद आता है आपका क्योरिंग। देखिए जो मोस्ट नेग्लेक्टेड पार्ट कहते हैं ना, क्योरिंग नहीं करते हैं। अब मैं क्योरिंग का आपको इफेक्ट इसमें समझाने वाला हूँ कि मान लीजिए मैंने कुछ भी क्योरिंग नहीं की, ओके, साइट में कुछ भी क्योरिंग नहीं कराया स्ट्रक्चर्स को, उस स्थिति में मुझे नो
नो क्यूरिंग ना, ये वाली ग्राफ मिली, मेरा ग्रेड ऑफ कंक्रीट M30, कोई क्यूरिंग नहीं किया। ओके, चलो भैया ठीक है। अगर आपने 7 दिन क्यूरिंग कर ली प्रॉपरली तो आपकी 38 MPa चली गई। कोई क्यूरिंग नहीं किया तो 30 MPa था, 7 दिन क्यूरिंग कराया तो 38 MPa हो गई। वो केवल क्यूरिंग के कारण आपको 8 MPa का फायदा हो गया। चलो भैया 14 डेज करा लो, 28 डेज करा लो, आगे बढ़ो। 28 डेज करा लिया तो मेरा 43 ग्रेड में चला गया, करीब करीब M43 बन गया। इसलिए बोलते हैं कि भाई 28 दिन तक ना कर सको तो 14 दिन तो कर लो भाई क्यूरिंग का कार्यक्रम। ओके, तो किसी के भी स्ट्रक्चर में 14 दिन से कम क्यूरिंग अलाउड नहीं है। ठीक है भाई, ये ध्यान रहेगा ना। 14 डेज मिनिमम, अगर 28 दिन कर लेता तो बड़े आदमी वो 1.5 गुना बन जाएगा आपका स्ट्रेंथ। 30 से 43 44 दिखाई दे रहा है उसमें कर्व में, तो इतना महत्व है। अच्छा, इसके बाद और क्या क्या देता है? प्लास्टिक सिंकेज आपका रिड्यूस करेगा अगर क्यूरिंग प्रॉपर करते हैं तो आप। दूसरा, ड्राइंग सिंकेज कम कर देगा, है ना। और आपका अगर क्यूरिंग, आप ये देखिए यहाँ है, इसमें जो इफेक्ट्स हैं ये तो उसका ड्रॉबैक दिया। इंक्रीज डिस्टेंस, वाटर टाइटनेस, एब्रेजन रेजिस्टेंस। अगर ये आप पेवमेंट के रूप में यूज कर रहे हैं, कंक्रीट का पेवमेंट है तो उसकी रेजिस्टेंस भी बढ़ती जाएगी, एब्रेजन रेजिस्टेंस। ठीक है, और वॉल्यूम स्टेबिलिटी। तो क्यूरिंग का बहुत बड़ा महत्व है, आपको इंसिस्ट करना चाहिए कि मिनिमम 14 डेज हमें क्यूरिंग करना ही करना है। आगे बढ़ो भाई। देन यहां पर आएगा आपका कवर का इफेक्ट। देखिए कवर का क्या इफेक्ट है। कवर यहां दिखाई दे रहा है, ये देखिए, ये 2 मिलीमीटर कवर रिड्यूस कर दिया। उसका कितना आया भाई? अगर 50 साल था तो 2 मिलीमीटर कम कर देने से 10 साल का रिडक्शन हो गया आपका। ये ग्राफ कर रहा है, प्रैक्टिकल वो कर रहा है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये टेस्टेड है लेबोरेटरी में। अगर आपने इतना 2 मिलीमीटर, और हम बोलते हैं यार 5-10 मिलीमीटर चलेगा, तो 10 मिलीमीटर अगर आपने चला दिया तो कितना रिड्यूस हो गया? 50 साल तो ऐसे रिड्यूस हो गया। 2 मिलीमीटर में 10 साल है भाई, और आपने बोला 10 मिलीमीटर चलेगा तो 50 साल की तो एज ऐसे ही कम कर दिया आपने, कवर वाली पॉइंट से, ड्यूरेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से। इसलिए कवर का बहुत महत्व है। इसीलिए वो बोलते हैं कि कंक्रीट टेक्नोलॉजी में 3C फैक्टर बोलते हैं। 3C क्या क्या है? कॉम्पैक्शन, प्रॉपर कॉम्पैक्शन होनी चाहिए। 1C आपने फॉलो किया। सेकेंड क्या है? कवर, कवर आपकी प्रॉपर होनी चाहिए भाई। और थर्ड क्या है? क्योरिंग। तो वो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ कंक्रीट टेक्नोलॉजी बोलते हैं 3Cs। तो 3Cs ये है जो हमें फॉलो करना है। ओके, प्रॉपर कॉम्पैक्शन, प्रॉपर कवर और प्रॉपर क्योरिंग। अगर आपने साइट में ये 3 चीज कवर कर लिया तो आपकी स्ट्रक्चर 50 साल से तो कम कहीं नहीं रहेगी। क्योंकि मैं उधर ड्यूरेबिलिटी के लिए वो आपको जो आपको दिखाया ड्रेनेज स्पॉट, उसको भी इंपॉर्टेंस देता हूँ। क्योंकि आपने अगर रूटीन मेंटेनेंस नहीं किया तो ड्रेनेज स्पॉट और एक्सपांशन जॉइंट सही नहीं है तो 100 साल नहीं चलने वाले हैं। तो ये सब भी बढ़िया किया, परंतु वो नहीं किया तो फिर भी 50-60 से ज़्यादा नहीं चल पाऊंगा। जब मैं सभी चीज़ को फॉलो करूंगा, रूटीन मेंटेनेंस भी रहेगी, ड्रेनेज और एक्सपांशन जॉइंट प्रॉपर वर्क करते रहेंगे, देन ओनली 100 ईयर्स एज्यूम कर सकते हैं। तो अब आप सोच लीजिए आपने कितना गलती कर रहे हैं तो आपकी स्ट्रक्चर कितनी साल चल सकती है। आगे बढ़ते हैं जी। हाँ, वाटर प्रूफिंग की बात है तो वाटर प्रूफिंग अपन को 3 तरफ से उसको देखनी है। वाटर प्रूफिंग को देखिए भाई, वाटर प्रूफिंग बॉडी में भी होनी। अगर वाइट्स हैं तो वाइट्स भरे जाने हैं, मतलब इंजेक्शन ग्राउटिंग करेंगे, उन वाइट्स को भरेंगे कंक्रीट बॉडी में। दूसरा है वाटर प्रूफिंग ज्वाइंट्स। अगर कोई भी ज्वाइंट्स है तो वो ज्वाइंट्स आपके प्रॉपर भरे जाने चाहिए। देन सरफेस में भी आप कोई, जैसे अभी डॉक्टर राव ने बताया कि कुछ आप सरफेस कोटिंग कर सकते हैं कंक्रीट सरफेस में, तो वो भी प्रिवेंट करता है। तो क्रैक सील कर दीजिए, ज्वाइंट सील कर दीजिए। अगर आपकी पोरस बॉडी है तो उस बॉडी को इंजेक्ट करा दीजिए प्रेशर ग्राउटिंग से, सीमेंट स्लरी से भी करा सकते हैं। और आजकल बहुत सारे केमिकल्स आ गए जिनकी विस्कोसिटी बहुत कम होती है, वो आराम से चले जाते हैं। तो इन तीनों तरह की ट्रीटमेंट करने से ही फायदा है। मैंने अगर जस्ट क्रैक को सील कर दिया तो वो वाटर प्रूफिंग नहीं हो गई। मुझे बॉडी को भी, अगर बॉडी में ज़्यादा वाइट्स हैं तो बॉडी को भी इंजेक्ट करा के भराना है। अदरवाइज क्या है,
हमेशा स्ट्रक्चर के ऊपर पानी पड़ा रहता है। और मैं बोलता हूं कि देयर शुड बी नो इंटरेक्शन बिटवीन वाटर एंड स्ट्रक्चर। और आपकी जो भी कलवर्ट है, कलवर्ट पे 1 फीट पानी भरा हुआ है हमेशा, और उसकी बॉडी पोरस है। अब क्या होगी, वो पानी तो अंदर जाएगा ही ना, और अंदर जाएगा तो सभी स्टील करोड़ होना ही होना है, ठीक है ना। तो या तो स्टील करोड़ करा लो या अपनी ड्रेनेज स्पॉट सही लगा के पानी को बाहर निकलवा दो, दोनों ही में से एक ही पॉसिबल है। तो आपके किसी भी स्ट्रक्चर में स्टैग्नेटेड वाटर नहीं होना चाहिए। कोई भी वाटर आया, फ्लो हुआ, ड्रेनेज स्पॉट के थ्रू नीचे गया या नेचुरल स्लोप से नीचे चला गया, स्टैग्नेशन नहीं होना चाहिए। वाटर कहीं पर रुकना नहीं चाहिए स्ट्रक्चर के ऊपर। ओके, ये सब रिकॉर्ड भी देखने चाहिए। आपको एक रिकॉर्ड मेंटेन करना है हर एक स्ट्रक्चर्स के लिए कि आप कब कब इंस्पेक्शन किए। किसी की ड्यूटी लगाइए, हर 6 महीने एक बार इंस्पेक्ट करके आएगा, अपना रिमार्क लिखेगा, जो भी देखा उसने लिखेगा। तो हर एक स्ट्रक्चर का एक लॉग बुक होना चाहिए, इंस्पेक्शन रजिस्टर होनी चाहिए, और उसमें 6-6 महीने में जो भी गया कुछ भी लिख दो उसमें, जो भी देखा आपने देखा ड्रेनेज स्पॉट काम नहीं कर रहा है, लिख दो ड्रेनेज स्पॉट काम नहीं कर रहा है। और फिर देखो दूसरे बार भी नहीं काम कर रहा है, क्या उसका कुछ तो इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए, है ना। तो वो है। तो कंडीशंस देखनी है आपको, रिपेयर्स अगर कुछ हुआ है पास्ट तो उसकी सब चीज़ें देखनी है कि क्या क्या किया था उन्होंने। अब देखिए ड्यूरिंग आपका कंस्ट्रक्शन क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है। अगर बड़ी ब्रिज है तो प्री स्ट्रेसिंग में जाते हैं हम लोग, है ना। तो इन जनरल प्रॉब्लम नहीं आता है, कभी कभी प्रॉब्लम प्री स्ट्रेसिंग में आ जाती है कि जब हम प्री स्ट्रेस करते हैं उस समय हमारा जो कोन है, एंकरिंग कोन है, बेरिंग कोन है, ये अंदर बेरिंग कोन कहलाती है, ये एंकर डिस्क कहलाती है। 2 एलिमेंट होते हैं इसमें। तो ये कभी कभी अंदर चला जाता है। वो क्यों जाता है? क्योंकि इस जोन में, एंड जोन पे जो कंक्रीटिंग है वो प्रॉपर नहीं गई, वहाँ पर थोड़ा रीएनफोर्समेंट ज़्यादा होता है एंड पे। तो उस एंड जोन पे कंक्रीटिंग प्रॉपर नहीं होने के कारण वो पोरस कंक्रीट कर सकते हो, उसमें वायर्स अधिक होते हैं, तो वो स्ट्रेंथ उतना ले नहीं पाता है, और प्री स्ट्रेसिंग फोर्स जब लगाते हैं तो अंदर चला जाता है। तो ये एक प्रॉब्लम आती है। कभी कभी इसलिए भी आती है कि हम एक्सेंट्रिक प्री स्ट्रेसिंग कर देते हैं। पहला वाला जो प्री स्ट्रेसिंग है, जनरली हमें ट्राई करना चाहिए कि प्री स्ट्रेसिंग हो रही तो पहला जो स्टैंड पुल करेंगे ना, वो कॉन्सेंट्रिक होना चाहिए। जो स्ट्रक्चर है उसमें वो कॉन्सेंट्रिक फोर्स लगाए, एक्सेंट्रिक ना लगाए पहला वाला, अदरवाइज उससे भी प्रॉब्लम होती है। मतलब एक्सेंट्रिक और कॉन्सेंट्रिक जो बोल रहा था मैं, उसका मतलब ये है कि अगर मेरे पास ये ऑप्शन है, ये है और नीचे भी है ये, तो मैं इन नीचे वाले को पहले ना करूं, इसको एक कर दूं एटलीस्ट पहला प्री स्ट्रेसिंग। तो थोड़ा सा उसमें इनिशियल स्ट्रेस आ जाती है, तो उसके बाद जो थोड़ा मोड़ा सेंट्रिक स्ट्रेस आने वाली है तो उसको टेक केयर कर लेती है। ओके, देखिए ग्रेड ऑफ कंक्रीट प्रॉपर नहीं होने से ये प्री स्ट्रेसिंग के समय ही बॉक्स गर्डर फेल हो गया, क्योंकि इसका ग्रेड ऑफ कंक्रीट प्रॉपर नहीं था, और ग्रेड ऑफ कंक्रीट प्रॉपर नहीं होने से यहाँ देखिए पूरी क्रैक्स आ गए। जब आप प्री स्ट्रेसिंग करेंगे ना तो गर्डर ऊपर की ओर उठता है, जिसको हम बोलते हैं हॉगिंग अप। प्री स्ट्रेसिंग के ड्यूरेशन में सिंपली सपोर्टेड गर्डर है वो ऊपर की ओर उठता है, ऊपर की ओर उठता है, और नीचे वाला अगर कंक्रीट उस समय आपका देखो ये फेल्वर कंक्रीट का है, कंक्रीट कंप्रेशन नहीं ले पाई। यहाँ जो देख रहे हैं ना फेल्वर, ये फेल्वर जो है जोन, ये कंक्रीट का फेल्वर हुआ, कंप्रेशन नहीं ले पाई और क्रैक कर गई, तो वो हॉगिंग अप होता है प्री स्ट्रेसिंग के समय। तो ये भी एक फेल्वर होता है। तो प्री स्ट्रेसिंग के समय ये 2 फेल्वर हो सकते हैं, और दोनों में जिम्मेदार है केवल कॉम्पेक्शन ऑफ कंक्रीट। आपने एक गलत मटेरियल नहीं यूज किया होगा, आपके मिक्स डिजाइन भी अच्छे होंगे, बट साइट में जो कॉम्पेक्शन होना था वो नहीं हुई, जो क्योरिंग होना था वो नहीं हुई, उसके कारण उसका रिजल्टेंट स्ट्रेंथ कम रहा, और वो स्ट्रेंथ कम होने के कारण प्री स्ट्रेसिंग के समय वो फेल कर गया। तो सब काम कर लिया, थोड़ा सा कॉम्पेक्शन क्योरिंग पे ध्यान नहीं दिया, प्री स्ट्रेसिंग किया, तो अभी तो स्ट्रक्चर तैयार ही नहीं हुआ, उसके पहले ही फेल हो गया। तो ये भी नौबत आती। ओके, ये सब क्रैक्स जैसे अंतराव साहब बता रहे थे आपको, ये डिफरेंट टाइप के क्रैक्स आते हैं, जनरली ये देखने को मिलते हैं स्ट्रक्चर्स में, और इनकी भी देखिए इस तरह का क्रैक्स है, आप उनकी विड्थ वगैरह भी देखी जाती है, और क्रैक्स को थोड़ा सा मॉनिटर करना चाहिए। इसके लिए बहुत ही सस्ता उपाय है, वो जो आपका ब्लड टेस्ट के लिए जो यूज करते हैं ना ग्लासेस, वो ब्लड टेस्ट का ग्लासेस, वो आप क्रैक के क्रॉस
ऐसे उसको कीजिए, क्रैक से 90 डिग्री लोकली वहीं पे देखिए, और मेरी क्रैक ऐसी है तो मैं 90 डिग्री पे वो ग्लास लगा दूंगा, और ग्लास को पूरी जगह नहीं चिपकाऊंगा, एंड पे चिपकाऊंगा, केवल बीच में गैप रहेगा। वो चेक करने के लिए एक कागज डाल दिया है, कागज डाल दिया बीच में, तो आपको पता चल जाएगा कि जो ग्लास स्ट्रिप लगाया वो सही लगाया कि नहीं, क्योंकि ग्लास स्ट्रिप को पूरा चिपका देने से काम नहीं चलेगा। आपके एंड में ग्लू लगेंगे और बीच में गैप रहेगा क्रैक के क्रॉस। तो अगर 3 महीने 6 महीने बाद आपने दूसरा विजिट किया और क्रैक आपकी हो गई, ग्लास क्रैक हो गई मतलब टूट गई, इसका मतलब वो क्रैक्स एक्टिव क्रैक्स है, स्ट्रक्चरली एक्सपांड हो रहा है फोर्स आने के कारण। ओके, कुछ नहीं हो रहा तो आप भी मस्त रहो, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना। तो अगर वो ग्लास हमारे टूट जाते हैं तो वो डायरेक्ट इंडिकेट करते हैं कि एक क्रैक जो है, स्ट्रक्चरल क्रैक्स हैं, वो बढ़ते चले जा रहे हैं, ठीक है ना। तो एक तो ये सिंपल सा वो ग्लास स्ट्रिप लगा के छोड़ देना है। दूसरी, इनकी विड्थ का ध्यान रखना पड़ता है कि किस विड्थ के हैं ये। जैसे उन्होंने दिखा था कि 0.2, 0.3 थिकनेस अलाउड है, सीवियर कंडीशन और मॉडरेट कंडीशन, ये सब, तो उसके हिसाब से 0.2, 0.3 की रेंज से बाहर हैं या कम है। हाँ, 0.2 तो जो सीवियर जोन है उसके लिए, हमारे लिए 0.3 चलेगा इस जोन के लिए। तो 0.3 से ज़्यादा है मतलब हमारे क्रैक की विड्थ ज़्यादा हो चुकी है। ओके, तो अब देखिए जैसे ये है आपका, ये अच्छी छोटी सी ब्रिज है, बट हार्डली स्पान 15 मीटर के स्पान है, बट इसमें बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई, और प्रॉब्लम की जड़ थे बर्थ के समय। देखो भाई, ये स्ट्रक्चर आ गई और केवल 20 साल पुरानी है, 20 साल पुरानी स्ट्रक्चर में आ गई, मतलब आपके लाइफ पीरियड में ही आ गई है। अभी आपने शुरू में बनवाया था, 20 साल बाद आप जब एक्सीएन हुए उसी समय आपने देख लिया इसको। तो ये नौबत नहीं आनी चाहिए भाई। अब इसका रीजन क्या हो सकता है, ये जो हमें दिखाई दे रहा है, अब देखिए इसमें यार आप लोग ही बताइए, कुछ कमेंट कीजिए। तो पहला कमेंट भोपाल से, भोपाल वाले बताइए इसका क्या रीजन हो सकता है। कोई भी भोपाल को जो बिलोंग करते हैं वो अपने एक कमेंट दीजिए, सही हो या गलत हो, वो बाद में अपन वो कर लेंगे। बोलिए बोलिए, ऐसे बोलिए सर। हाँ, दूसरा हम इसके आसपास ग्वालियर, स्पेसिंग ऑफ बार, 2 आ गई भोपाल से रीजन, कवर एंड स्पेसिंग ऑफ बार। ग्वालियर से जो बिलोंग करते हैं, ग्वालियर से कुछ आंसर आना चाहिए भाई। और नाम की लिस्ट नहीं दिया ना मुझे, नहीं तो मैंने नाम बताता। है क्या सर नाम की लिस्ट? किधर है सर? दीजिए सर नाम की लिस्ट, वो बड़ा आसान हो जाएगा। नाम की लिस्ट है ना, तो हाँ दिखाई दी, वो लॉटरी निकालने में आसान होगी। जो सो रहा है उसकी लॉटरी निकालनी है। और ओके, थैंक यू। तो श्री पीसी बाकरी जी, बालाघाट, अगर प्रेजेंट है तो, नहीं है तो स्किप करेंगे, आगे चलेंगे। एनके गुप्ता, गुप्ता जी, हाँ जी गुप्ता जी बताइए बताइए, मैं रिपीट कर दूंगा ना, आप बोलो, मुझे सुनाई देगा। ओके, इसमें क्या था, M20 उन्होंने यूज किया। एग्रीगेट साइज भी आपका करना ठीक है 20 mm, वैसे हम तो 10 mm तक ही अलाउ करते हैं ना आजकल, थोड़ा बड़ा था उसके अंदर, वो भी एक रीजन है। वाटर सीमेंट रेशियो भी हो सकता है एक रीजन। ओके, और बताओ भाई, अभी हमारे पास 2-3 रीजन आ चुके हैं। एक आया था कि रीएनफोर्समेंट की स्पेसिंग है ना, दूसरा कवर, तीसरा वाटर सीमेंट रेशियो और एग्रीगेट साइज। हाँ, अभी तो आप लोग थोड़ा सो रहे थे। सबसे पहले कॉम्पैक्शन चिल्लाना था जोर से, है तो धीरे से थोड़ी बोलना है। हमने तो बोला है ना, जोर से बोला। लंच अच्छा खासा कराया है इन्होंने, जोरदार स्वीट डिश खिलाया, एनर्जी तो कम होना ही नहीं चाहिए, है नहीं। ओके, तो बेसिकली आप देखेंगे क्या है, इसमें इन्होंने 28 mm डाया बार यूज किया, जब हमने उसको थोड़ा देखा, और नंबर ऑफ बार्स थे 18, और जो उसकी विड्थ थी वो केवल 300 मिलीमीटर, मतलब 30 सेंटीमीटर विड्थ है बॉटम में, और 5 लेयर रीएनफोर्समेंट, 18 बार्स, 28 मिलीमीटर डाया, मतलब उन्होंने 4 के 4 लेयर दिए और 5th लेयर में 2,
तो 4 ही लेयर मान लो, चलो फिफ्थ को छोड़ देते हैं, 4 लेयर हो गया। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, कंजेस्टेड वार जो हो जाते हैं अगर आपने प्रॉपर स्पेसर यूज नहीं किया। इसमें उन्होंने लिखा है मोल्डेड स्पेसर यूज करना है, हर एक 3 मीटर में लगाना चाहिए मोल्डेड स्पेसर, जिससे अगर आप मोल्डेड स्पेसर यूज करते तो 2 बार के बीच में 25 mm का क्लियर डिस्टेंस होता, 2 एक्सट्रीम 2 बार के बीच में, और जो मिडिल का है वो 50 mm का गैप होता अगर स्पेसर यूज किया गया होता। बट स्पेसर किसी ने यूज नहीं किया, उन्होंने ऐसे ही लगा दिया। तो जब 4 लेयर आप लगाएंगे ना तो कोई इधर हो जाता है, कोई उधर हो जाता है, नेट इफेक्टिव कंक्रीट जाने के लिए जगह ही नहीं रहती है। तो आपकी कंक्रीट देखिए ठीक से पहुंची नहीं है नीचे तक, वाइब्रेशन भी थोड़ा मोड़ा किया, प्रॉपर नहीं कर पाया। तो ये तो 2 मेन कल्प्रिट हो ही गए कि हमें एक तो मोल्डेड स्पेसर ऐसी केस में यूज करना चाहिए, या फिर क्या था यार इसकी विड्थ थोड़ा बढ़ा देते हैं ना, थोड़ा सा 30 था 40 कर लेते हैं ना, कितना ज्यादा खर्चा हो जाता, बट थोड़ी शांति रहती ना। अगर हमें पता था कि हम मोल्ड नहीं, स्पेसर मोल्ड नहीं यूज कर पा रहे हैं, तो हमें थोड़ा सा उस समय सोचना चाहिए, है ना, लोकली थोड़ा सा चेंज करके कर सकते थे। तो ये मतलब छोटी छोटी गलतियां हैं, बट ये अब ब्रिज इस कारण से ये सुपर स्ट्रक्चर का ये वाला पार्ट रिकंस्ट्रक्ट होने वाला है, क्योंकि जिस दिन हम गए उस दिन ही ट्रैफिक बंद कर दिया, अदरवाइज तो बहुत डेंजरस थे, तो किसी दिन भी गिर सकता था ना ये। तो इस तरह का ध्यान रखना है भाई कि कॉम्पैक्शन करनी है, क्यूरिंग करनी है, ये सब चीजें ध्यान रखनी है। देखिए आप कितनी वो है, और इसकी जो क्रैक्स है ये जो देख रहे हैं ना राइट में, ये डेक स्लैब में पहुंच चुका, ये डेक स्लैब की क्रैक है। पहले तो हमने ये सब क्रैक्स तो गर्डर्स पे देखा ना, ये आपकी क्रैक्स तो ये गर्डर तक आ गई, और यहां से फिर अब ये डेक में चली गई, यहां पर ये दिख नहीं रही। आगे चलिए, ये देखिए ये डेक स्लैब में क्रैक्स है, ये वही क्रैक आगे एक्सटेंड हो गई, है ना। तो ये छोटी छोटी गलतियां हैं भाई। अब चलो तो काम तो चलाना है, उन्होंने ऐसा वो बना के एक अच्छी बाईपास सर्जरी कर दी इसकी। बाईपास सर्जरी का मतलब ये हुआ इन्होंने उस गर्डर को वेट से फ्री कर दिया। कैसे फिट गया, उन्होंने फुल लेंथ का स्टील स्ट्रक्चर्स बनाया और दोनों पियर के बीच में रख दिया। तो जो गर्डर सीवियरली अफेक्टेड दिखाया मैंने, उस गर्डर की बाईपास हो गई, समझ लो एक तरह से अपनी हार्ट बाईपास होती है ना, इस तरह से समझ लो उसने लोड का पाथ एक अलग कर दिया कि उस गर्डर में उस स्पान में लोड ही ना आए। तो पूरा पियर P1 और P2 में चला गया। A1 से P1 तो ठीक था, P1 P2 में ये प्रॉब्लम थी, तो उन्होंने P1 P2 के बीच में पूरा एक आगे होगी फोटो, ये पूरा बना के रख दिया ट्रस्ट सिस्टम करके। अब इसमें से गाड़ियां चला रहे हैं, तो उन्होंने स्टेप तो ठीक ले लिया, बट अगर हम शुरू में गलती नहीं किए होते तो बताओ 2002 की स्ट्रक्चर है, केवल 20 साल हुई है, और 20 साल के स्ट्रक्चर्स को अपने हाथों से डिमोलिश लिखने के लिए आपके आंसू निकल जाएंगे जब आप रिकमेंडेशन देंगे कि इस स्ट्रक्चर को डिमोलिश करना है। तो रियली इतना पेनफुल वर्ड होता है ये कि आप रिकमेंडेड करते कि स्पान नंबर 2 शुड बी डिमोलिश्ड एंड न्यू कंस्ट्रक्टेड। उस समय रियली मतलब हम कांप जाते हैं ये लिखते हुए, हमें भी सोचना पड़ता है यार 20 साल की स्ट्रक्चर्स को हम क्या लिख रहे हैं, बदल कभी नहीं सकते कुछ, डिमोलिश नहीं करेंगे तो पूरा फिनिश हो जाए, किसी दिन कोई बड़ी एक्सीडेंट हो जाएगी ना। परंतु इससे ये सीख मिलती है कि अगर कोई ऐसा इमरजेंसी आया है तो आप इस तरह का ट्रस्ट सिस्टम यूज करके काम चला सकते हो, ठीक है ना भाई। इसलिए मैं इसको दिखा रहा था कि अगर कोई इमरजेंसी आ गई, आपकी स्ट्रक्चर रियली बहुत डिफिशियंट है, तो ऐसा कुछ सिस्टम लगा के आप काम चलाओ, सरकार कुछ दिन तो चला ही सकते हैं, ठीक है ना। बट इस तरह का नौबत ना आए तो बड़ी अच्छी बात है। और कुछ नहीं, अपन को क्या देखना था, कॉम्पैक्शन देखना था, वो स्पेसिंग की थोड़ी सी ध्यान रखनी थी, है ना। तो ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन जो है ना वो आपका मेजर रोल है, सभी हमारे इंजीनियर भाइयों का, सबसे बहनों का भी भाई, हाँ बहनों का भी मेजर रोल है नहीं तो ये बोले हमें तो छोड़ दे, हम मस्त रहते हैं, हमें कुछ नहीं करना है, ऐसा नहीं है, बहनों का भी मेजर रोल है। ओके, तो भाई ये गलतियां हमें नहीं करनी है। अच्छा भाई, अब क्या टाइम हो गया सर? 33 है 17:33। तो खत्म, अब कंक्लूजन।